Hello students, in this video lecture we are going to study chemical properties of alkanes. Alkanes की chemical properties को हम study करेंगे. Alkanes show following types of chemical reactions like substitution reaction, right? Oxidation reactions. We have oxidation reactions, then pyrolysis, aromatization, isomerism and action of steam. These are the chemical reactions which are shown by alkane under certain conditions, not at normal conditions, right? So first of all, substitution reactions. It includes halogenation, means introduction of halogen into the alkane, right? And halogenation includes the chlorination, bromination, iodination as well as fluorination. Substitution reactions also includes nitration, means introduce nitro group into the alkane, right? And sulfonation means introduce sulfonic group into the alkane, right? This is known as sulfonation here, right? Sulfonic group is SO3H and nitro group is NO2. Oxidation reactions, it includes the combustion, incomplete combustion as well as controlled oxidation. Controlled oxidation takes place in presence of catalyst, right? Next, pyrolysis. It is also known as thermal decomposition, aromatization, isomerization as well as action of steam. Now we will discuss one by one in detail. So first of all, what are substitution reactions? Those reactions in which atom or groups of atoms in a molecule is replaced by some other atoms or groups of atoms. These are known as substitution reactions, right? Now first of all, in substitution reactions we will study about halogenation. So halogenation is the removal of hydrogen atom by any halogen, right? In an alkane, this is known as halogenation, right? So halogenation includes chlorination, bromination, iodination. We will study one by one, right? So first of all is we have chlorination, means introduction of chlorine group into the alkane molecule. We have CH4, that is methane. We will react this with chlorine molecule Cl2 in presence of sunlight or heat. The temperature would be 520 to 670 Kelvin. नाउ यहाँ पे क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या क्लोरीन अटैच हो जाएगा, राइट? तो क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा. और जो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और एक क्लोरीन यहाँ पे रहा, वो बन जाएगा HCl. सो ये क्या है, ये क्लोरोमीथेन है, राइट? अब ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होता है, राइट? अब फर्दर से ये क्लोरोमीथेन जो है रिएक्ट करेगा फिर से क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ सेम कंडीशंस, राइट, लाइट और हीट. तो हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन बनेगा प्लस HCl, राइट? एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और क्लोरीन अटैच हो जाएगा, तो दो क्लोरीन हो जाएंगे और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ वो इस क्लोरीन, एक जो क्लोरीन यहाँ पे बचा हुआ था उसके साथ कंबाइन होकर HCl. अब ये डाइक्लोरोमीथेन फर्दर से क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा अंडर सेम कंडीशंस, तो ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म भी हम कहते हैं, ये होगा प्लस साथ में HCl सेम, राइट? और हमारे पास जो ट्राइक्लोरोफॉर्म है ये अगेन जो है रिएक्ट करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ अंडर सेम कंडीशंस, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl. यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप होता है जब तक ना पूरे हाइड्रोजन कार्बन से रिमूव हो जाएं. तो ये हमारे पास क्लोरीनेशन रिएक्शन है. अब इस क्लोरीनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, राइट, हाउ दिस रिएक्शन आकर. तो मैकेनिज्म जो है किस तरह का है, इट आकर इन स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप जो आता है हमारे पास, दैट इज चेन इनिशिएशन स्टेप. सबसे पहले चेन स्टार्ट होगी, राइट? जो हमारा हैलोजन है दैट इज क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसकी होमोलिटिक फ्यूजन होगी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स यहाँ पे बन जाएंगे. फिर हमारे पास चेन प्रोपागेट होगी, दैट इज चेन प्रोपगेशन स्टेप. जो हमारा अल्केन है इसका भी होमोलिटिक फ्यूजन होगा लाइट के प्रेजेंस में, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, इस तरीके से भी क्लीवेज हो सकता है,
राइट। ओ और आर, फिर हमारे पास या तो जैसे कोई अल्केन है इन प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन होगा लाइट के प्रेजेंस में, और मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस ये जब होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और क्लोरीन क्या बन जाएगा, HCl। थर्ड जो स्टेप है दैट इज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब चेन जो है टर्मिनेट हो जाएगी, एंड हो जाएगा। तो जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हैं ये भी आपस में कंबाइन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना सकते हैं, या फिर जैसे हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल जो मीथेन से बना, और क्लोरीन का फ्री रेडिकल ये कंबाइन होके CH3Cl बन सकते हैं, या अगर हमारे पास दोनों जो हैं मिथाइल फ्री रेडिकल हैं तो ये कंबाइन होके इथेन बन सकते हैं, राइट। इस तरीके से तो जो हमने क्लोरीनेशन रिएक्शन में फर्दर स्टेप्स आपको डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, उनके अंदर भी जो है मैकेनिज्म हम शो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये CH3Cl है, राइट। तो फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज इस तरीके से हम शो करेंगे। तो ये CH2Cl फ्री रेडिकल रह गया और HCl बन गया ये, राइट। अब ये जो फ्री रेडिकल बन गया हमारे पास, राइट, CH2Cl, फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ अटैक करके ये CH2Cl2 बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, राइट। इसी तरीके से डाइक्लोरोमीथेन, इसका भी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, होमोलिटिक फ्यूजन, राइट। तो CHCl2 बन गया प्लस में HCl। अब ये अगेन जो है रिएक्ट करेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तो एंड सोहन हम जो है ये फ्री रेडिकल के हेल्प से ये शो कर सकते हैं। तो ये क्लोरीनेशन के बारे में था। अब है ब्रोमिनेशन, राइट। हेलोजिनेशन के अंदर आता है ब्रोमिनेशन भी। तो ब्रोमिनेशन भी जो है इट आकर सिमिलर टू दैट ऑफ क्लोरीनेशन, बट जो रेट है ब्रोमिनेशन का वो थोड़ा कम है। इट अकर्स लेस रैपिडली, उतनी तेज़ी से ये रिएक्शन नहीं होगा जितना क्लोरीनेशन होगा, राइट। तो इसलिए इसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, रिएक्शन शो नहीं की है। इट इज़ सिमिलर टू क्लोरीनेशन। नेक्स्ट इज आयोडीनेशन रिएक्शन इन हेलोजिनेशन। आयोडीनेशन रिएक्शन में क्या है कि आयोडीन ऐड करेंगे हम, आयोडीन के साथ जो है रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन का यहाँ से, राइट। तो हीट के प्रेजेंस में, लेकिन ये रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और बहुत ही स्लो में होता है, स्लो प्रोसेस है ये। तो रिवर्सिबल है तो हमारे पास यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होके आयोडीन कंबाइन हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड और प्लस HI। ये रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो HI प्रोड्यूस होता है इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोबारा इसके साथ रिएक्ट करके फर्दर से जो है ओरिजिनल मीथेन बना लेता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि दोबारा से ये रिवर्स ना हो जाए प्रोडक्ट, तो इसके अंदर हम जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐड कर लेते हैं इस रिएक्शन के अंदर, जैसे HiO3, ठीक है, ये भी एक एक्ट करता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आयोडिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, इन दो में से कोई सा भी एक जो है हम एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर। और जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिएक्ट करके जो है वाटर प्लस जो आयोडीन होता है इसको आयोडीन में कन्वर्ट करते हैं I2 में। जब ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है बैक जो है रिवर्स नहीं होता है, राइट। तो ये रिएक्शंस यहाँ पे शो की गई हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम HiO3 के साथ रिएक्ट करें तो वाटर और I2 फॉर्म हो जाता है, या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड को नाइट्रिक से रिएक्ट करें तो वाटर और NO2 प्लस में I2 फॉर्म हो जाता है, राइट। ये कोएफिशिएंट्स जो हैं ये बैलेंस करके यहाँ पे लिखे गए हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्लोरीनेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीनेशन रिएक्शन जो हैं जितनी भी जहाँ पे फ्लोरीन की एडिशन होती है, जहाँ पे फ्लोरीन रिएक्ट करता है, तो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं फ्लोरीन की वो हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं एज वेल एज एक्सप्लोजिव, तो इसलिए इनको नॉर्मल कंडीशंस पे परफॉर्म करना डिफ़िकल्ट होता है। सवर्ट्स नाम के एक केमिस्ट जिन्होंने कहा कि हम फ्लोरीनेशन शो कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से, उन्होंने एक मेथड बताया। सबसे पहले स्वार्ट्स जो रिएक्शन है इट इज़ अ टाइप ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से हम फ्लोरीनेशन शो कर सकते हैं, राइट। उन्होंने कहा कि हम क्लोरोअल्केन दैट इज़ RCl, क्लोरोअल्केन को किसी भी मेटालिक हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे AgF सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है, सिल्वर मेटल है, मेटल का हैलाइड है। तो यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज होगा, फ्लोरीन क्लोरीन के जगह आ जाएगा और क्लोरीन फ्लोरीन के साथ आ जाएगा, तो RF प्लस AgCl, तो ये बन गया फ्लोरोअल्केन। तो मेटालिक हैलाइड
ज़रूरी नहीं है कि हम सिल्वर फ्लोराइड के साथ ही रिएक्ट करें। हम जो है Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एंटीमनी, राइट, SbF3, राइट, इसका हैलाइड हो सकता है, एंटीमनी का आर्सेनिक का हैलाइड हो सकता है, इनके साथ भी हम रिएक्ट कर सकते हैं क्लोरो अल्केन को, और हमें आगे रिस्पेक्टिव अल्केन मिलेगा, राइट। तो दिस इज़ नॉन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। इस तरह से फ्लोरिनेशन हो सकती है, इसको स्टडी किया, स्वार्ट्स ने नाम रख दिया स्वार्ट्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये क्लोरोइथेन लिया है, Hg2F2 के साथ रिएक्ट किया तो हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा और ये Cl यहाँ से इधर आ जाएगा, राइट। अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स इसे ले लेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि जैसे हम मीथेन को रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ तो हमारे पास क्लोरोमीथेन बन रहा है, इथेन को रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ तो क्लोरोइथेन बन रहा है। तो क्या हम प्रोपेन को रिएक्ट करें क्लोरीन के साथ तो क्या आगे भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं? तो ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कहीं पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, मोर देन टू और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। तो ऐसा क्यों? जैसे प्रोपेन को जब आप क्लोरीनेशन में शो करते हैं तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। और 2 क्लोरोप्रोपेन जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, मतलब मीन्स के इसके 80 to 90% चांसेस इसके बनने के हैं एंड 15 to 20% चांसेस इसके हैं, राइट। बट दोनों प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये 2 प्रोडक्ट्स क्यों बनते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, मैकेनिज्म के जरिए समझते हैं। सबसे पहले क्लोरीनेशन में क्लोरीन की होमोलिटिक फिजन, तो फ्री रेडिकल्स बन गए। अब हमारे पास जो प्रोपेन है CH3 CH2 CH3, तो इसको ओपन करके लिखा हुआ है, क्लोरीन की फ्री रेडिकल प्रेजेंस में यहाँ पे भी होमोलिटिक फिजन होगा और ये फ्री रेडिकल बन जाएगा जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होके ये H फ्री रेडिकल जब यहाँ पे बनेगा तो वो HCl बन गया, और ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया प्राइमरी फ्री रेडिकल बन गया। इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके 2 हाइपरजन स्ट्रक्चर बन सकते हैं, राइट। इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे तो फाइनली जब ये फ्री रेडिकल क्लोरो फ्री रेडिकल कंबाइन करके ये जो है फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन। सेकंड प्रोडक्ट में ज़रूरी नहीं है कि ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ से होमोलिटिक फ्यूजन शो करे, ये वाला हाइड्रोजन भी शो कर सकते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। तो क्लोरीन के प्रेजेंस में अगर इन हाइड्रोजन ने होमोलिटिक फ्यूजन शो किया तो फिर फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा ये, राइट, और साथ में HCl, और ये हमारे पास 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, इस पर 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, राइट। और हमें पता है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, तो उसके कारण जो 2 क्लोरोप्रोपेन वाला प्रोडक्ट बनेगा ये फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर जो 2 क्लोरोप्रोपेन का प्रोडक्ट बनेगा ये स्टेबल बनेगा, मेजर बनेगा ये, राइट। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, राइट। तो इस वीडियो के लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, राइट। ओके, थैंक यू।